Hello everyone, welcome to your own channel Education Can't Wait. In today's video, we are going to discuss about chapter number 2 of geography, that is globe, latitudes and longitudes. So let's begin our session with a positive thought. The daily grind of hard work gets a person polished. Now let's begin with globe. What is globe? This is the figure of globe. Here we are having this is the figure of globe, and let us discuss about several features of globe. A globe is a circular ball which is a miniature model of the earth. ग्लोब क्या है? एक सर्कुलर बॉल है जिसको हम मिनिएचर मॉडल बोल सकते हैं अर्थ का. और जो ये ग्लोब टर्म है ये कहाँ से डिराइव हुई? लैटिन वर्ड ग्लोबस से डिराइव हुई, विच मीन्स अ स्फीयर और अ राउंड ऑब्जेक्ट. ग्लोबस से डिराइव हुई जिसका मतलब क्या होता है? अ स्फीयर और अ राउंड ऑब्जेक्ट. इफ आई टॉक अबाउट मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स अ स्मॉल मॉडल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट uses of globe in brief. If I talk about globe, then what are the uses of globe? Globe can be used to locate continents, countries and water bodies such as oceans and seas. Globes are useful in learning about the true shape of the earth. But there are several demerits as well of the globe. What are the demerits? A globe does not show the details of landforms and location of a small town. Globes do not show the entire earth at a time. This is the demerit कि entire earth को ये एक बार में नहीं show करता है. Why? Because as you see that here we are just able to see only one portion of the earth, not the other half portion of the earth. ओके, सो दिस इज़ द डीमेरिट कि हम एक बार में पूरी एंटायर ग्लोब को नहीं देख सकते हैं या पूरी अर्थ को हम नहीं देख सकते हैं. दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ द ग्लोब. मूविंग फर्दर, लार्जर ग्लोब्स कैन शो सम डिटेल्स बट दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल. अगर हम ग्लोब का साइज़ बढ़ा देते हैं, एज वी नो कि साइज़ में वराए ऑफ द ग्लोब. अगर हम चाहें तो साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. वी कैन मेक अ ग्लोब on cricket ball as well and on the football as well. It means size may vary. अगर हम बड़ा ग्लोब बनाते हैं तो उसमें क्या डिमेरिट आएगी कि we will not be able to handle that globe. Then moving further, it is also difficult to carry globes everywhere. Globes are not easily portable. These are also the disadvantages of the globe. Now our next topic is axis. If I talk about axis, what is axis? Will learn from this figure only. Axis, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह के होल काइंड ऑफ, मतलब यहाँ पर होल हुआ है और जहाँ से एक निडल को पास कराया गया है. ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम ऐसा मानते हैं कि बीच से निडल पास कराया. जब निडल पास कराया तो क्या होगा कि दोनों एंड्स पे वो निडल निकल कर आएगी. ओके, जब वो दोनों एंड्स पर निकल कर आती है तो वो एक्सिस फॉर्म करती है, मतलब इसको एक बेस देती है, एक आधार देती है. तो जो वो आधार देती है उसी को हम एक्सिस बोलते हैं. यू कैन से कि जो ये निडल जिस तरह से ये फिक्स हुई है, द फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. आप देख सकते हो कि अर्थ जो है हमारी थोड़ी सी टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, तो ये जो निडल है ये भी टिल्टेड मैनर में ही पास कराई जाती है. ओके, तो इसी को हम एक्सिस बोलते हैं. Here we can see the definition. In a globe there is a needle called the axis that is fixed through the globe in a tilted manner. The axis of the globe passes through two extreme points known as the North Pole and South Pole. North Pole और South Pole से ये पास करती है निडल, इसको हम बोलते हैं एक्सिस. The axis is shown in the form of needle on the globe. Earth also shows और rotates on its own axis. जो अर्थ है वो अपने इसी एक्सिस पर रोटेट करती है. एक्सिस जो है वो कम्प्लीटली एक इमेजिनरी लाइन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम अगर किसी भी क्रिकेट बॉल से निडल और थ्रेड की हेल्प से थ्रेड को पास कराएं और फिर उस बॉल को हम स्पिन करें तो इट विल बी ईजी टू स्पिन दैट बॉल. तो जब वो स्पिन करेगी तो किसके अराउंड स्पिन करेगी? उस थ्रेड के अराउंड स्पिन करेगी. एट दैट टाइम दैट थ्रेड विल एक्ट एज एक्सिस फॉर द बॉल. Moving further, we talk about the latitudes. What are the latitudes? Now, in this topic, we are going to discuss about the latitudes
and some important latitudes of the earth as well, that is parallels of latitudes we will discuss about. Okay, so in latitudes we can say in this figure as it is visible here, in this figure these are some latitudes drawn over here. अब हम इनको समझते हैं कि ये होते क्या हैं। मैंने आपको ये 5 लैटिट्यूड्स अभी ड्रॉ करके दिखाए हैं। सो लैटिट्यूड्स आर कम्प्लीटली इमेजिनरी लाइन जो पैरेलल रन करती हैं इक्वेटर के। बीच में इक्वेटर लाई करता है। इक्वेटर, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर और नीचे ये लैटिट्यूड्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं इक्वेटर के। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेलल? पैरेलल आर द 2 लाइंस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से हर पॉइंट पर इक्विडिस्टेंट होती हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम ले सकते हैं रेलवे ट्रैक, या फिर आप अपनी नोटबुक का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जो आपकी नोटबुक की लाइंस होती हैं वो भी क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती है, बिकॉज वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती। अगर ये लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर जाकर मीट कर जाती हैं तो इट मीन्स दे आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर, दे आर नॉन पैरेलल लाइंस। लेकिन जो लाइन हम उनको कितना भी एक्सटेंड कर ले दोनों साइड और कभी ना मिले, दोज लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। ओके, तो इसी तरह से हमारी अर्थ पर भी कुछ पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं जो कम्प्लीटली इमेजिनरी हैं। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स इज इक्वल। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लैटिट्यूड कि उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। क्यों है? क्योंकि वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। Now moving further, all these lines are parallel to each other, so they are called parallel of latitude. अब जब ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनको हम बोलते हैं parallels of latitude। यहीं से हमारा निकल कर आया है डेफिनेशन parallels of latitude की। all parallel circles from the equator up to the poles, इक्वेटर से पोल्स तक जो पैरेलल लाइंस हैं उन सबको हम बोलते हैं parallels of latitude। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। जो लैटिट्यूड है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इवन मार्क भी किया हुआ है डिग्रीज के थ्रू। लेट मी शो। फॉर इंस्टेंस इसी का आप एग्जांपल ले लीजिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, तो इसको किस में मेज़र किया है? डिग्रीज में। हमारे लैटिट्यूड्स मेज़र होते हैं डिग्री में। मूविंग फर्दर, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर मूव करेंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो 66.5 डिग्री, इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। मूविंग फर्दर जब हम 90 डिग्री पर पहुँच जाएंगे तो दैट इज़ द नॉर्थ पोल। लाइकवाइज इन दिस साउथ from the equator, when we move southwards, then here we encounter with, it is given wrong here, 23.5 degrees south, 66.5 degrees south, and then here 90 degree south, it is given here. Okay, so these are the latitudes and parallels of latitudes. Moving further, let us talk about spatial latitudes. As I had shown in figure as well कि parallel latitudes जो हैं हमारे पास important parallel latitudes वो 5 हैं। Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. Moving further, let us talk about, we did this, let us talk about heat zones. हमारी अर्थ जो है वो हीट के बेसिस पे डिवाइड की हुई है हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि जहाँ पर जिस तरह से भी जिस तरह का क्लाइमेट होता है उसी के बेसिस पे हमने अपनी अर्थ को डिवाइड किया है। अगर हम बात करें हीट जोन्स की तो हीट जोन्स हमारी अर्थ पर हैं 3 तरह के, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। ओके, सो वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल वन बाय वन। हमारा जो अर्थ है इस पर पूरी तरह से हमें हीट रिसीव नहीं होती सन की, मतलब अनइवन हीट रिसीव होती है हमें सन की, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। उसी के बेसिस पे हमने अपनी पूरी अर्थ को डिवाइड किया हुआ है कुछ क्लाइमेटिक जोन्स पे या हीट जोन्स में। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं टॉरिड जोन की, तो टॉरिड जोन को हम डिफाइन करते हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री
साउथ ये हमारा होता है टॉरिड जोन, जहाँ पर मैक्सिमम हीट हमें सन की रिसीव होती है। वो कौन सा एरिया है? इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, उस एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन, जहाँ पर हमें मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट जहाँ पर होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का ही सेकेंड नेम हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है। इट लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. It stretches from Tropic of Cancer in the north to Tropic of Capricorn in the south. The zone experiences hot and humid climate throughout the year as it receives direct rays from the sun. Our country India lies in this zone. जो हमारी कंट्री है वो इसी जोन में लाई करती है, टॉरिड जोन में. दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू आवर कंट्री, लेकिन जो हमारी कंट्री का हिस्सा है वो टॉरिड जोन में भी लाई करता है. मूविंग फर्दर लेट अस टॉक अबाउट टेम्परेट जोन. अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो टेम्परेट जोन को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन. जो हमारा ये टॉरिड जोन है और एक ये फ्रिजिड जोन है, इनके बीच में जो एरिया है वो होता है टेम्परेट जोन. जी जो ये हमें ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, दिस इज टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन क्या है? जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है. मॉडरेट का मतलब नीदर टू हॉट नो टू कोल्ड, जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है. मॉडरेट टेम्परेचर उसको बोलते हैं या मॉडरेट क्लाइमेट उसको बोलते हैं. तो हाउ विल वी डिफाइन दिस? टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री north to 66.5 degree north and 23.5 degree south to 66.5 degree south. Or we can say that temperate zone lies between Tropic of Cancer to Arctic Circle and Tropic of Capricorn to Antarctic Circle. दिस जोन इज़ नीदर टू हॉट नोर टू कोल्ड. अब यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ की बात हम कर सकते हैं? यूएसए, जापान एंड न्यूजीलैंड लाइज इन दिस जोन. मूविंग फर्दर लेट अस टॉक अबाउट फ्रिजिड जोन. जो फ्रिजिड जोन है वो हमारा लाई करता है 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री, दिस ब्लू पोर्शन इन द फिगर, एंड 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री इन द साउथ. ये हमारा है फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन तो अपने आप में नाम बता रहा है कि जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है उसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं. द जोन कवर्स द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड रीजन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. It receives slanting rays of the sun. The climate in the frigid zone is extremely cold. And if we talk about the countries, then Iceland, Finland and Norway are the some countries that lies in this zone. Okay, moving further, longitudes. Latitudes जो हैं वो horizontal lines होती हैं हमारी अर्थ पे, जो imaginary है, completely imaginary lines हैं, लेकिन वो कौन सी होती हैं? horizontal lines होती हैं. और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं. दीज आर ऑल्सो कम्प्लीटली इमेजिनरी लाइंस एंड दे आर हॉरिजॉन्टल. सॉरी, दे आर लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल एंड लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. ओके, सो here if we talk about longitudes, then longitudes are the imaginary line that runs from north pole to south pole. नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो रन करती हैं ये वो वाली लाइन होती हैं लॉन्गिट्यूड्स. ओके, और वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती थी? वो पूरे एंटायर सर्कल को रिप्रेजेंट करती थी. वो इस तरह होती थी. तो दे आर पैरेलल टू वन अनदर, बट लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर. दे आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. हम इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं. अब हम अगर फीचर्स की बात करें मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के, सबसे पहले हम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं. देयर आर 360 कंप्लीट मेरिडियंस, क्योंकि जो अर्थ है वो कंप्लीट सर्कल की तरह है और कंप्लीट सर्कल कितनी डिग्रीज में मीज़र होता है? 360 डिग्रीज में मीज़र होता है. दैट्स वाई देयर आर 360 मेरिडियंस, 180 इन द ईस्ट एंड 180 इन द वेस्ट. 180 इन द ईस्ट एंड 180 इन द वेस्ट. अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जो जहाँ से हम इनिशिएट करते हैं अपने लॉन्गिट्यूड्स का, दैट इज़ नोन एज प्राइम मेरिडियन. द मेरिडियन दैट passes through the Greenwich in London is known as the prime meridian and it stands at 0 डिग्री. जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ स्टैंड करता है? 0 डिग्री पे स्टैंड करता है. ओके, अब 0 डिग्री की अगर हम ईस्ट में बात करें तो 180, वेस्ट में बात करें तो भी 180,
हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओके, इसी के 0 डिग्री के जस्ट बिसाइड, इसके बिल्कुल पीछे, बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड ये 180 डिग्री पर 180 डिग्री है, एंड दैट इज 180 डिग्री ईस्ट एज वेल एज 180 डिग्री west. Now some features of meridians if we talk about, then meridians of longitude are equal in length. The distance between two meridians is maximum at the equator. जो ये दो लॉन्गिट्यूड होंगे कोई भी, उनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर पर डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो डायमीटर सबसे बड़ा सर्कल माना जाएगा, वहीं पर डिस्टेंस इनका मैक्सिमम होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस डिक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल्स, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। मूविंग फर्दर, द मेरिडियंस ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो अबाउट द टाइम ऑफ अ प्लेस। हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी? फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे किसी को अपने घर का एड्रेस देना है तो आई हैव टू गिव सम लैंडमार्क एज वेल। तो लैंडमार्क मैं कैसे दूंगी? लैंडमार्क ईदर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन या कोई और ऐसा लैंडमार्क जो मेरे घर के आसपास होगा, एंड दैट इज़ अ वेरी रेनाउंस्ड प्लेस। ओके, तो इसीलिए अब हम देख सकते हैं कि अर्थ तो पूरी की पूरी स्फीयर है, तो स्फीयर पे हमें मुश्किल होता है किसी पॉइंट को मार्क करना। आप अपनी क्रिकेट बॉल पर अगर मार्क करके देखोगे कोई भी पॉइंट, तो इट इज़ नॉट ईजी कि आपने यहाँ पे तो मार्क कर दिया, लेकिन आप पूरी बॉल को फिर से रोटेट करोगे तो आपको वो पॉइंट एक जैसा ही दिखेगा, बिकॉज इट्स अ स्फीयर। तो स्फीयर है तो वहाँ पर बट ऑब्वियस हमें वो एक जैसा ही दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, वाई वी नीड देम। सो हियर दे आर यूज टू लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस। कोई प्लेस लोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अपनी अर्थ पे। ओके, फॉर इंस्टेंस इफ़ आई वॉन्ट टू टेल अबाउट इंडियाज़ पोजीशन, तो मैं बता सकती हूँ कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है, उसके अगर मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो आई कैन ईजिली डिमार्केट इट। ओके, देयर वी यूज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। Likewise, latitudes and longitudes. Here I am talking about specifically longitudes. Longitudes जो है वो हमारी हेल्प करता है टाइम को मेज़र करने में भी। अभी हमने पढ़ा कि जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री से जाता है, 0 डिग्री से पास करता है, तो और कंप्लीट 360 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है, 180 डिग्री दिस साइड, 180 डिग्री दिस साइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूड्स किस तरह हेल्प करते हैं? 24 आवर्स में डिवाइडेड है, क्योंकि पूरी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। 24 आवर्स का टाइम लेती है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर। 15 डिग्री वो 1 आवर में घूमता है और 1 डिग्री वो 4 मिनट में घूमता है, जिससे हम कैलकुलेट करके अपने टाइम को मेज़र कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्रीनविच इज़ 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स बिहाइंड इंडिया। वाई? क्योंकि इंडिया में सन सबसे पहले आता है। अब हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं? टाइम को हम सन की पोजीशन से मेज़र करते हैं। ओके, सन के पर्सपेक्टिव से, मूवमेंट ऑफ द सन, मूवमेंट ऑफ द मून, मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, उसी के बेसिस पे हम अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से हम अपने टाइम को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पर सनराइज़ होता है ईस्ट में, तो ईस्ट में सबसे पहले सनराइज़ होगा, इट मीन्स वहाँ पर कोई ऐसा फिक्स टाइम होगा, उसके पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने अपने सेंटर को माना है, प्राइम मेरिडियन को अपना सेंटर माना है, तो 0 डिग्री पे है जो यहाँ पर टाइम होता है, दैट विल बी एप्लीकेबल टू दी होल वर्ल्ड। उसी के रिस्पेक्टिव में हम अपने टाइम को एडजस्ट करते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें और हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए, फॉर इंस्टेंस अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया किस लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है? इंडिया लाइज बिटवीन 97 डिग्री ईस्ट एंड 68 डिग्री ईस्ट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है 97 डिग्री ईस्ट एंड 68 डिग्री ईस्ट में। तो इसके बीच में जो लॉन्गिट्यूड लाई करते हैं वहाँ पर भी तो टाइम वेराई करता है। अब हम अगर बात करें गुजरात और असम से, गुजरात और असम के बीच में, मतलब जहाँ पे सबसे पहले सनराइज़ होता है असम एंड हियर गुजरात, इसी के बीच में जो टाइम का गैप है वो है 1 आवर 45 मिनट्स का।
तो 1 hour 45 minutes फॉर इंस्टेंस यहाँ पर कोई टाइम है, यहाँ पर कोई टाइम है, तो ये तो इनकन्वीनियंट हो गया ना। अगर मेरा कोई रिलेटिव इधर है एंड आई एम हियर, इफ़ आई एम सेइंग कि हमें 9 बजे मिलना है, तो हाउ कैन वी, उसके लिए तो 9 बजे कुछ और है, मेरे लिए 9 AM कुछ और है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी कन्वीनियंस के लिए कि यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में टाइम सेम रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं उसको, कि वहाँ पर जो टाइम होगा दैट विल बी एप्लीकेबल टू दी होल कंट्री। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया हमने अपने लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री को माना हुआ है, 82.5 डिग्री ईस्ट को माना हुआ है स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड। ओके, तो जो भी हमारा टाइम यहाँ पर होता है 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो टाइम होता है दैट विल बी एप्लीकेबल टू दी होल कंट्री, इररिस्पेक्टिव कि कहाँ पर कितना टाइम है, ये इसको मीज़र कर देता है। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड इज़ नोन एज दी, जिस स्टैंडर्ड पे, जिस लॉन्गिट्यूड पे, हमारे पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होता है उसी को हम स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं फॉर दी होल कंट्री। जब हम उसको स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं तो दैट विल बी दी स्टैंडर्ड फॉर होल। अब ये तो इंडिया की बात है कि इंडिया के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 hour 45 minutes का गैप है, लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर जो बहुत वास्ट होती है, बहुत विड्थ उनकी ज़्यादा होती है। फॉर इंस्टेंस रशिया को हम देख लें, रशिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत चौड़ी है, तो वहाँ पर तो टाइम का इशू आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो और ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स बीच में आएंगे, तो इसीलिए उनके लिए कोई एक स्टैंडर्ड टाइम जोन मानना सोल्यूशन नहीं है। वहाँ पर उनके पास मोर देन 1 टाइम जोन हो सकते हैं, 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन हो सकते हैं। जैसे रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स आर देयर। ओके, और जो अर्थ है वो कम्प्लीटली हमारी डिवाइड है 24 आवर्स टाइम जोन में, हर एक घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो कवर करती है। So what we did in this chapter today, we talked about globe, then after that we talked about axis, then latitudes, parallels of latitudes, important parallels of latitudes, heat zones, longitudes, and we talked about longitude and time, then we talked about standard time and Indian standard time. Okay, so if you like my video, hit the subscribe button and don't forget to like the video. Thank you and have a nice day.